Okay. So these are three very important, let us say, set of concepts. So उसके बारे में देखिए. A group of people feeling of oneness, unity, तीन चीजें हैं. सो नेशन, हाँ, सो नेशन, नेशनलिज्म, नेशन स्टेट as terms, as concepts, as ideas, we are going to discuss essentially as modern concepts. Okay, as modern concepts, the concepts which emerge in the modern period. Okay, और यूरोप के बारे में थोड़ा सा जनरली अगर हम बोलते हैं तो 1600 onwards, very roughly, let us say 1600 onwards, roughly, very roughly. Okay, now, so as modern concept, what does nation indicate? तो पहला उसका पहलू है a group of people. So it's a group. Okay, it's a group. दूसरा, what is the distinctive character of that group of people? क्या बोला हमने उसमें? Oneness, the feeling of oneness या feeling of unity है. Okay, what is the distinctive character? अब उस ग्रुप का distinctive character ये है, the group as a whole shares a bond, feeling of oneness, unity. Okay, उसका मतलब ये हुआ, it distinguishes itself, it differentiates itself from the other groups. Okay, so there is something within the group which holds all members, every member of the group together. वो बॉन्ड है और उसको हमने बोला है कि oneness है, unity है. Okay, and the third one which is very very important, क्या तीसरा है? तीसरा क्या बोला है? aspiration. aspiration का मतलब आपका गोल है, वो सिंपल सी भाषा में, you aspire to be something, your goal, your objective. क्या है वो? separate. दूसरा एक शब्द लिखा है independent. separate, independent, यानी कि खुद का बोलिए, खुद का, उनका खुद का, उस ग्रुप का खुद का. क्या है एस्पिरेशन? पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस. वी एज अ ग्रुप want to be politically independent, plain and simple, politically independent, politically separate, politically autonomous, but independent is the right word, politically independent. अब politically independent का मतलब क्या है? कल हमने स्टेट की चर्चा की है, तो we can simply say that look, we are a group, there is something amongst all of us which binds all of us together. We constitute a group, sort of a homogeneous group. Say for example, we have oneness, we have unity, and therefore we think that we need to have our own political apparatus, own political system, so that we can think freely, we can come up with our own vision, we can decide about that, we can follow it up through by taking different decisions, and we can realize our vision. उसमें आप ऐसे लिख सकते हो. ओके, आप देखिए कि अगेन विल गेट बैक टू तिलक बिकॉज दैट इज अ क्वाइट पॉपुलर रेफरेंस. सो स्वराज इज माय बर्थ राइट, ऐसा बोला उन्होंने. और फिर बाद में नंबर ऑफ अदर लीडर्स, ऑर्गेनाइजेशंस, ओके, contributed to that, so on and so forth. So we as Indian people develop
a vision and started demanding independence from the colonial state, from the clutches of colonial rule. तो हमारा एस्पिरेशन क्या था? Tilak spoke about that, Swaraj being his birthright. Aurobindo, Yogi Aurobindo, okay, Sri Aurobindo and then Yogi Aurobindo, the famous Bengali extremist leader, okay, the leading light of the extremist phase, okay, very critical of the colonial rule. He took the idea of nation to another level, spiritual level. We will discuss that later on somehow. Okay, so ये extremist थे, उन्होंने बोला कि स्वराज चाहिए. And then if we come to the what at the end of the 20s, say for example 30s, especially 30s, not 20s but 30s, आपने वो लाहौर अधिवेशन के बारे में पढ़ा होगा. तो फिर रेजोल्यूशंस आते हैं, रेजोल्यूशन ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस आता है. क्या रेजोल्यूशन आता है? कंप्लीट इंडिपेंडेंस. नहीं तो डोमिनियन स्टेट्स का भी एक डिमांड चल रहा था ना कि सॉवरेनिटी आपका रहेगा, यानी कि क्वीन का रहेगा, लेकिन इंटरनल हमें क्या दीजिए? सॉरी, ऑटोनॉमी, नॉट इंडिपेंडेंस, इंटरनल ऑटोनॉमी दीजिए. वी हैड प्रिंसली स्टेट्स, ओके, तो उनको इंटरनल ऑटोनॉमी थी ना उनको, तो डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई थी. लेकिन लाहौर के बाद और उस रेजोल्यूशन के बाद क्या हुआ? हमने ये डिमांड करना शुरू किया, एंड दैट एमर्ज्ड एज आवर ऑब्जेक्टिव, एज आवर गोल. क्या गोल बना हमारा? पूरी तरीके से कंप्लीटली वी वांट टू कट ऑफ फ्रॉम यू एंड वी वांट आवर ओन separate independent political existence. I hope you got it. This is the example. Okay. So there are three features, okay, which tell us about something called as the idea of the nation. Okay. Let us take it forward and then get back to this. Now, what is nationalism? आप मुझे बताइए, what is nationalism? आपके हिसाब से what is mean by that? What comes to your mind? हाँ. Can I say feeling of oneness? Is it right? Yeah, there is something special to that. आप इमेजिन कीजिए, हम कोलंबो गए हैं, ऐसे ही इधर से कोई गया, उधर से कोई गया, तमिलनाडु से गए, एमपी से गए, महाराष्ट्र से गए, एंड विच एवर स्टेट यू कम फ्रॉम, आपका एक ग्रुप मिला आपको, एंड देन यू स्टार्टेड टॉकिंग इन दैट लैंग्वेज, मे बी मराठी, मे बी तेलुगु, मे बी तमिल, तो क्या लगेगा आपको? तो डिस्पाइट नॉट नोइंग द अदर गाइज एंड गर्ल्स, immediately what happens to us? That bond, due to speaking the same language, suddenly becomes live. Say for example, the language becomes a binding thread. Okay, ऐसा होता है, ये जनरली है, ये ये कॉमन ऑब्जर्वेशन हमारा होता है. तो वो भी वननेस है ना, वो भी सेंस ऑफ यूनिटी है, वो भी बॉन्ड है. तो कैन दैट फीलिंग ऑफ वननेस be described as, seen as nationalism, या कुछ उसका अलग ही फीचर है? Okay, so certainly nationalism is all about feeling of oneness, feeling of unity, no doubt about that. However, every feeling of oneness, every feeling of unity, every bond cannot be seen as nationalism. उस वननेस में कुछ तो खास होना चाहिए, तो वो क्या है? ये सवाल पहला है. और अब मुझे बताइए कि व्हाट इज नेशनलिज्म अकॉर्डिंग टू यू? बताइए, जो भी है, हाउ डू यू लुक एट नेशनलिज्म?
या वही लगता है आपको कि नहीं नहीं नहीं, दिस इज द सोल ऑफ द नोशन ऑफ नेशनलिज्म, फीलिंग ऑफ वननेस, फीलिंग ऑफ यूनिटी, या इज देयर एनीथिंग एल्स? हाँ, ओके फाइन, दैट इज ऑल्सो फाइन. व्हाट इज नेशन? लेट अस गेट बैक टू दिस. तो ग्रुप है, फीलिंग ऑफ वननेस है, लेकिन उसको यहां हमने क्या किया है? तीसरा डायमेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये जो फीलिंग ऑफ वननेस है ना, किस फॉर्म में, किस विजन में एक्सप्रेस हो रहा है? हा, नाही तर कोलंबो विमानतळावर भेटलो, मराठीत बोललो, तमिळमध्ये बोललो आणि गेलो पुढे, म्हणजे संपली स्टोरी. असं आहे का? नाही ना. म्हणजे जर असं झालं, इमॅजिन करा, few Maharashtrians gathered in श्रीलंका. आता मराठीत असल्यामुळे मी मराठीतच बोलतो की महाराष्ट्र नावाचं नेशन वेगळं पाहिजे आपल्याला. वी डू नॉट वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन. वी वॉन्ट, बिकॉज नाम में महाराष्ट्र है, तो हमारा अलग राष्ट्र चाहिए. अगर ऐसा कुछ कर रहे हम, तो हमारा जो फीलिंग ऑफ वननेस होगा तो इस टाइप का होगा. होगा या नहीं होगा? किसी का भी, अगर तमिल लोग वैसे कर रहे, पंजाबी लोग वैसे कर रहे, हिंदी बोलने वाले कोई भी नॉर्थ इंडिया से आ रहे, उनका अगर वो विजन होता है, इफ द फीलिंग ऑफ वननेस शेयर्ड बाय दैट ग्रुप टेक्स दिस फॉर्म, is known for this aspiration, for this goal, then and then only this feeling of oneness, unity, bond can be called as nationalism. So she is right कि फीलिंग ऑफ वननेस जो नेशन में होता है, लेकिन नेशन क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल है, अगेन हैविंग फीलिंग ऑफ वननेस है, लेकिन उस फीलिंग ऑफ वननेस का डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर क्या है? ये डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर है. I hope you got it. अब एग्जाम्पल्स देखिए. There was the demand of Nagaland separate from Indian Union. There was a demand of Dravidistan from southern India, Madras province, separate from Indian Union. There was a demand of Khalistan separate from Indian Union. So in examples में जो फीलिंग ऑफ वननेस था, तो वो फीलिंग ऑफ वननेस, अरे आपण सारखी भाषा बोलतो, आपण मद्रासवरून आलेलो आहे, पंजाबवरून आलेलो आहे, असं होतं का ते? दॅट फीलिंग ऑफ वननेस वॉज नॉट लिमिटेड टू दॅट, टू स्पीकिंग सेम लँग्वेज, टू हॅव कम फ्रॉम द सेम रिजन. नो, इट वॉज फार 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 ग्रेटर देन द सेम. तो ग्रेटर का मतलब था क्या? तो दोज ग्रुप्स हैड डेवलप्ड the aspiration to be separate from Indian Union, and they wanted to have their own nation state. यानी कि अब इसका मतलब मुझे बताइए, what is mean by having aspiration of separate independent political existence? उसका मतलब मैं लिख सकता हूं यहां पे, हमें हमारा खुद का स्टेट चाहिए. Am I right? बिल्कुल ये है. इसीलिए तो फिर वो बनता क्या है? नेशन स्टेट बनता है. हाँ, जम्मू कश्मीर में कुछ सेक्शंस थे जिसको सेपरेटिस्ट कहा गया है. सेपरेटिस्ट का मतलब वो शब्द से पता चलता है ना, दे वांटेड टू बी सेपरेट फ्रॉम इंडियन नेशन स्टेट. उनका खुद का, उनको नेशन स्टेट बनाना था. आई होप यू गॉट इट. सो नेशनलिज्म इज सर्टनली अ फीलिंग ऑफ वननेस, but it is not any kind of feeling of oneness. It is a very specific kind of feeling of oneness, and unless and until we have that specific feeling of oneness, और specificity क्या है, अब हम उसको definitely बता सकते हैं. ये है aspiration. So the feeling of oneness, unity, has to be qualified by having that aspiration of a separate existence. अगर आप खुद का स्टेट मांग रहे हो, तो आप क्या बने हैं? नेशन. नेशन, नेशन एज अ कॉन्सेप्ट, और वो जो फीलिंग है उसको हम क्या कहते हैं? नेशनलिज्म कहते हैं. आई होप यू गॉट इट. या कंफ्यूजन है अभी भी?
नहीं ना, हाँ, तो उसको थोड़ा आगे लेके जाते हैं। अब दूसरा देखिए, उसी में लिखेंगे नेशनलिज्म, नेशनलिज्म इज अ डॉक्ट्रिन। ओके, नेशनलिज्म इज अ व्हाट? डॉक्ट्रिन। मतलब क्या है? एक वैल्यू सिस्टम है। इसीलिए तो आप पढ़ोगे, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में भी पढ़ोगे और पॉलिटी में भी पढ़ोगे कि नेशनलिज्म को क्या कहा जाता है? वैल्यू सिस्टम कहा जाता है, और ये पॉपुलर शब्द है। नेशनलिज्म इज एन आइडियोलॉजी। एम आई राइट? जैसे हम बीजेपी के बारे में बार बार बता रहे, हिंदुत्व, वो बीजेपी की आइडियोलॉजी है। हर एक पार्टी के अपनी अपनी, लेफ्ट की आइडियोलॉजी, सीपीआई, सीपीएम, सो एंड सो फोर्थ। ओके, सो आइडियोलॉजी। सो नेशनलिज्म, अब देखिए, वी हैव लिबरलिज्म एज एन आइडियोलॉजी, वी हैव सोशलिज्म, एंड देयर आर मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ सोशलिज्म। ओके, मार्क्सियन सोशलिज्म एक काफी फेमस था, सो एंड सो फोर्थ, वी लुक इनटू दैट। सो लिबरलिज्म one ideology, socialism another ideology, feminism another ideology, fascism another ideology। और मॉडर्न पीरियड में जैसे आते हैं हम, ओके, 18th सेंचुरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसके भी पीछे हम चले जा सकते हैं। 15, 16, 17, धीरे 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 ये नेशनलिज्म एंड नेशन स्टेट की फिनोमेना एमर्ज होती है यूरोप में, धीरे धीरे वो होता है। ओके, सो इवेंचुअली इन कोर्स ऑफ डेवलपमेंट nationalism, okay, becomes a well accepted doctrine, value system and ideology। लेकिन मतलब क्या है उसका? डॉक्ट्रिन का मतलब क्या है? वैल्यू सिस्टम का मतलब क्या है? वन सिंपल वे ऑफ मेकिंग सेंस ऑफ दिस इज नेशनलिज्म एज अ डॉक्ट्रिन, as a value system, as an ideology is based on certain assumptions। कुछ उसके assumptions है। क्या assumptions है? पहला assumption देखिए, वो ये assume करता है कि humanity and human societies across the world are naturally divided into nation। अब assumption देखिए, यानी कि पूरा ह्यूमैनिटी हम नेचुरली डिवाइडेड बोलते हैं, वो यह अजम्पशन है उनका। अजम्पशन का मतलब क्या है? हम रियलिटी का डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं क्या? नहीं, हम ये मान के चल रहे हैं, वी अज्यूम, क्योंकि हमको लगता है, एंड दैट कम्स फ्रॉम द आइडियोलॉजी ऑफ नेशनलिज्म। सो नेशनलिज्म एज अ डॉक्ट्रिन, नेशनलिज्म एज अ वैल्यू सिस्टम, नेशनलिज्म एज एन आइडियोलॉजी बिलीव्स दैट, एंड दिस इज द फर्स्ट अजम्पशन, the entire humanity, okay, is naturally divided into nation। यानी कि सोसाइटीज को, यानी कि एक सोसाइटी को दूसरी सोसाइटी से अलग करने वाली बात क्या है? एक सोसाइटी को दूसरी सोसाइटी से अलग करने वाली बात क्या है? क्या चीज है वो अलग करती है एक सोसाइटी को दूसरी सोसाइटी से? आंसर सामने है ना आपके, नेशन। नेशन मतलब क्या है? फीलिंग ऑफ वननेस है। लेकिन किस टाइप का फीलिंग ऑफ वननेस है? एक्स सोसाइटी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, दैट एक्स सोसाइटी हैज द फीलिंग ऑफ वननेस, एंड दैट एक्स सोसाइटी बीइंग अ ग्रुप हैविंग फीलिंग ऑफ वननेस has the aspiration of a separate political existence। I hope you got it। पूरे ह्यूमैनिटी को वो बोलते हैं ऐसे, ये assumption है, ये सही है, गलत है, रियल है, अनरियल है, ये अलग चीजें हैं। We are not looking into that। What we are primarily at a fundamental level looking into and trying to make sense is only the assumption। क्या बिलीफ है उनका? उनका बिलीफ है कि पूरा का पूरा जो ह्यूमैनिटी है, सभी सोसाइटीज है, तो सोसाइटीज आर नेचुरली डिवाइडेड
in the form of nation. They constitute different nations. They constitute different nations. इसीलिए सोसाइटीज का ऑर्गेनाइजेशन कैसे होना चाहिए, पॉलिटिकली कैसे ऑर्गेनाइज उसको करना चाहिए. सोसाइटी शुड बी ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकली ऑन द बेसिस ऑफ दैट नेचुरल डिवीजन. क्या है वो? नेशन स्टेट. सो नेशंस, दूसरा अजम्पशन उनका है, पहला मैंने लिखा नहीं है लेकिन मैंने आपको बताया. सोसाइटीज आर ओके नेचुरली डिवाइडेड ओके as what? As nations. Because of what? Because they constitute separate nation. यानी कि किस चश्मे से देख रहे ह्यूमन, एंटायर ह्यूमैनिटी को? चश्मा ही डाल के बैठे हैं. अरे ये एक अलग ग्रुप है, तो फिर 3 क्राइटेरियाज है. अरे मुझे दूसरा ग्रुप मिला है. आई होप यू गॉट इट. उनका चश्मा ही वैसे है, जैसे हम बोलते हैं ना कि जिस कलर का चश्मा पहनोगे ना वैसी ही आपको दुनिया दिखेगी. तो ये नेशनलिज्म का चश्मा पहन के देख रहे हैं. इसीलिए तो बीजेपी, एंड फॉरगिव मी फॉर दैट, वी आर ऑल स्टूडेंट्स एंड एज स्टूडेंट वी हैव एवरी राइट टू vehemently criticize the party in government. Doesn't matter whether we are talking about BJP, Congress, left, जो भी है. Okay, so don't worry about that. So we are not biased unnecessarily, but we will have to be very critical, deeply critical, sometimes excessively critical of the authorities. उसी चश्मे से हम कर रहे हैं. Okay, so अब बीजेपी ने तो नेशनलिज्म का एक अलग ही फॉर्म सामने रखा है, जिसको हम हिंदुत्व कह रहे हैं. अगर आप पार्टी को क्रिटिसाइज करोगे तो वो देश हित के अगेंस्ट जाएगा. दे हैव इक्वेटेड नेशनलिज्म विद द देशभक्ति, एंड दैट्स अ वेरी डीपली प्रॉब्लमेटिक. हाँ, लेकिन वो छोड़िए. द इशू इज नेशनलिज्म एज अ डॉक्ट्रिन. ओके, अब देखिए, पहला अजम्पशन आपको पता चला. सो इफ यू आर अ नेशनलिस्ट, यू वुड वियर दैट स्पेक्ट. वो चश्मा आप पहनोगे और सभी तरफ आप देखोगे कि देखिए, मुझे तो ये नजर आ रहा है कि ये जो डिफरेंट सोसाइटीज है, एक सोसाइटी दूसरे से अलग है, क्योंकि दोज आर नेचुरली डिवाइडेड अलोंग द लाइंस ऑफ नेशन. दे कॉन्स्टिट्यूट अ ग्रुप हैविंग द फीलिंग ऑफ वननेस and they have aspiration of a separate political existence. ये नेचुरल है ऐसे बोल रहे वो. इसीलिए दूसरा assumption उसके आधार पे होता है, societies should be organized how? आंसर बहुत ही explicit है, organized as nation states. ये उनका लॉजिक है. ओके, सोसाइटी शुड बी ऑर्गेनाइज्ड एज सेपरेट नेशन स्टेट्स. यानी कि नेशन स्टेट्स का मतलब ही कि सेपरेट ही होने वाले हैं वो. ओके, अब देखिए, एक दूसरी टर्म है, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, पेट्रियोटिज्म. पेट्रियोटिज्म, व्हाट इज पेट्रियोटिज्म? Simply speaking, patriotism is love for one's own country. One's own country, one's own land. You can even say one's own nation. है ना? But then what is the difference between patriotism and nationalism? Is there a difference? What is the difference? I think nationalism is somehow more rigid and not flexible enough. Okay. First place, they have the aspiration that they want separate, independent political existence. Okay. That doesn't equate with patriotism, because you explain the difference, right? But you use the wrong word to begin with. So nationalism is not rigid. It is rigid in one sense of the term, but nationalism is a doctrine with those assumptions. Okay, so it's a broader term. It's a much broader, much comprehensive term in comparison with patriotism. Patriotism की स्टोरी शुरू और खत्म वहीं पे होती है. क्या स्टोरी है वो? I love my land. बात खत्म. मेरे देश पे मेरा प्रेम है, बात खत्म. वो डॉक्ट्रिन नहीं है. डॉक्ट्रिन कब बनता है? नेशनलिज्म डॉक्ट्रिन है, यानी कि उसका अजम्पशन है.
ओके, इसीलिए नेशनलिज्म इज फार कॉम्प्रिहेंसिव देन पेट्रियोटिज्म. ओके, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द टू. ओके, हाँ, दोनों में डिफरेंस डेफिनेटली है, लेकिन इज देयर अ सिमिलैरिटी बिटवीन द टू? Between, yes, there is a similarity, because even in nationalism we must possess that love, that affection, that kindness for one's own land, no doubt about that. But nationalism वहीं पे नहीं खत्म होता है. वो जो लव का फीलिंग है, मेरा बॉन्ड जो है उस ग्रुप को, उस सेक्शन को, उस सोसाइटी को, तो ये जो डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर है वो. इसीलिए नेशनलिज्म डज नॉट रिमेन just the usual feeling of oneness, but becomes a special feeling of oneness. And what is so special about that feeling of oneness and unity? Again, the answer is here. Separate political existence. Separate political existence. Okay. अब देखिए, you will study this in modern world history. 1648 is a very landmark development in the European history, when the Westphalia Treaty took place, or that Westphalia Treaty, which happened in the year 1648, that is seen as institutionalization of the system of nation state. तो यूरोप का जो नक्शा बटा, तो नेशन स्टेट में वो बटे गए, अलग अलग हो गए, और उसको लेजिटिमाइज किया गया, इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया. वो ट्रीटी का पेक्युलरिटी है. उसका हिस्ट्री वगैरह वो मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री में आप पढ़ोगे, डोंट वरी अबाउट दैट. और वहां से लेकर अब देखिए, वो तो मिड 17th सेंचुरी की बात थी. फिर यहां पे कॉलोनियलिज्म आया. फिर हमें पता चला कि नेशन कुछ होता है, नेशनलिज्म कुछ होता है, डेमोक्रेसी कुछ होती है, इलेक्शन कुछ होता है, ऐसे हमें पता चला. और then once we became aware of those modern ideas, we were deeply influenced. We reflected on those ideas, and we started using the same ideas against the colonial government. So we started mobilizing ourselves. अरे नहीं, ये खाली फॉरेन रूल नहीं है, ये फॉरेन भी है, कॉलोनियल है, डीपली एक्सप्लॉइटेटिव है. ये ऐसे ही करता रहेगा. It will keep exploiting us in every sense of the term. Therefore, we need to come together. And whatever obstacles we had, those obstacles were supposed to be overcome. इसीलिए तो फिर इकट्ठा आना, वो फीलिंग ऑफ वननेस डेवलप करना, इसी को हम बोलते हैं राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया. वो थोड़ी 17th सेंचुरी में था, 18th सेंचुरी में था क्या? वो बिल्कुल नहीं था. वो 19th सेंचुरी में ही हम बात करते हैं राइज ऑफ नेशनलिज्म की. हाँ, 1857 का रिवोल्ट अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया है. सावरकर बोलते हैं कि वो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, उनका अलग इंटरप्रिटेशन है. बाकी हिस्टोरियंस बहुत सारे बोलते हैं कि नो नो नो, इट वाज नॉट इन रियल सेंस ऑफ द टर्म फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, बट रादर इट वाज अ काइंड ऑफ रिवोल्ट ऑफ द सोल्जर्स हु वर डिससैटिस्फाइड, सो एंड सो फोर्थ. उसका इंटरप्रिटेशन अलग अलग हुआ है. तो 19th सेंचुरी में हम इंडिया में कॉलोनियल कॉन्टेक्स्ट में नेशनलिज्म की राइज की बात करते हैं. फिर वो मॉडरेट फेज, फिर एक्सट्रीमिस्ट फेज, फिर गांधीयन फेज, वी ऑल नो अबाउट दैट. आप देखिए, सो ये मॉडर्न पीरियड का नतीजा है, डेवलपमेंट उस पीरियड की है. यूरोप में आया तो धीरे 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 जैसे हम 20th सेंचुरी में आते हैं, तो खाली इंडिया में नेशनल मूवमेंट नहीं आया, पूरे कॉलोनियल वर्ल्ड में वो नेशनल मूवमेंट एंड स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ द रिस्पेक्टिव कॉलोनी बिगिन. और 40s में, 50s में, 60s में, उन्हीं दौरान द फॉर्मर कॉलोनीज बिकेम इंडिपेंडेंट एंड दे इमर्ज्ड एज द मॉडर्न नेशन स्टेट. तो ये 20th सेंचुरी का स्टोरी है. एंड मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री में आपको एक चैप्टर है डीकोलोनाइजेशन. दिस इज कॉल्ड एज द प्रोसेस ऑफ decolonization. Okay, that is colonies becoming independent, becoming free, and emerging in the form of the unit called as the nation state. Okay, so हमेशा ध्यान में रखिए, ये इंटरव्यू में बहुत बार सवाल पूछते हैं कि what is the difference between nationalism and patriotism. There is a similarity between the two,
the attachment, the bond, the unity, the oneness, the love is there in both the ideas. But nationalism is a comprehensive idea in comparison with patriotism. Patriotism is just love for one's own land, one's own country. But nationalism, besides being that, also is a doctrine. Always keep in mind that. And these are the two assumptions. So the first or second assumption so पहले से आता है. पहले assumption के आधार पे आता है. पहला assumption क्या है? All humanity naturally divided into nation. Naturally. I hope you got it. अगर वो naturally वैसा है तो हमें पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कैसे करना चाहिए? तो वो बोलते हैं कि नेशन स्टेट के फॉर्म ही उसका क्या कीजिए? ऑर्गेनाइज कीजिए. ओके, सो ये नाउ व्हाट इज नेशन स्टेट? आप बोलेंगे कि सर नेशन तो पता चला है लेकिन स्टेट क्या है? या अब यहां पे आइए. व्हेन एस्पिरेशन ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल of separate political existence fructify, comes into reality, then the unit that we witness, then that unit is known as nation state. अब इंडिया कब नेशन स्टेट बना? 15th of August 1947. हमारा एस्पिरेशन तो 19th सेंचुरी से निकला था. बहुत साल गए बीच में, नेशनल मूवमेंट आया, डिफरेंट फेजेस आए, और वो फ्रुक्टिफाई कब हुआ? रियलाइज कब हुआ वो ड्रीम? ये जो एस्पिरेशन था. सो नेशन स्टेट इज द यूनिट दैट कम्स इनटू बीइंग, कम्स इनटू एग्जिस्टेंस व्हेन दिस ड्रीम, दिस एस्पिरेशन गेट्स फुलफिल्ड. उस यूनिट को बोला जाता है नेशन स्टेट. ओके, इंडियन नेशन स्टेट 15th of August 1947. और अलग अलग एग्जांपल्स हम उसके दे सकते हैं. ओके, सो दिस इज इट एज फार एज नेशन, नेशनलिज्म एंड नेशन स्टेट. हाँ, एक जस्ट वन स्मॉल थिंग हियर. इट इज अ वैल्यू सिस्टम, इट इज एन आइडियोलॉजी, बट वी हैव मल्टीपल टाइप्स ऑफ नेशनलिज्म. अब इंडियन हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं ना कि मॉडरेट नेशनलिज्म, एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिज्म जो कल्चरल नेशनलिज्म था, गांधीयन नेशनलिज्म विच वाज इंक्लूसिव, सेक्युलर, टॉलरेंट, लिबरल, ओपन माइंडेड, ओके, विच बिलीव्ड इन द सिग्निफिकेंस ऑफ all kind of diversity in Indian society, and on the top of it based on non-violence. जो एक्सट्रीमिस्ट फेज वाला नेशनलिज्म था, जिसको ब्रॉडली कल्चरल नेशनलिज्म कहा जाता है, समटाइम्स स्पिरिचुअल नेशनलिज्म, इट वाज नॉट नोन फॉर द प्रिंसिपल ऑफ नॉन-वायलेंस. बट गांधीयन नेशनलिज्म वाज सर्टेनली नोन फॉर नॉन-वायलेंस. ओके, ही बिलीव्ड इन दैट. विल डिस्कस दैट लेटर ऑन. आप हिटलर का भी नेशनलिज्म था, हिटलर मुसोलिनी का नेशनलिज्म था. वो किस टाइप का नेशनलिज्म था? वो एग्रेसिव था, वो इंपेरियलिस्ट था, वो वेरी वायलेंट था. ओके, अब देखिए, एग्रेसिव, इंपेरियलिस्ट एंड वायलेंट था. वो अलग अलग उसके फीचर्स है वो. ओके, दैट इज सो इन 20th century nationalism seems to have acquired a deadly form in Europe. यूरोप में हुआ है ये. हाँ, once upon a time in the same Europe, nationalism did play a very constructive role. But 20th century आते आते nationalism का फॉर्म ऐसे बदलता है यूरोप में कि वो, जैसे मराठी में भस्मासुर बोलते हैं उसको, वेरी डिजास्टरस. क्या हुआ देखिए ना. एंड the most prominent example is that of the Nazi and fascist Nazi regime, respectively under the leadership of Mussolini in Italy and then Hitler in Germany. The deadly, disastrous form of nationalism. But interestingly, around the same time, nationalism had acquired a very constructive form in India, in the form of the Gandhian nationalism and many more other varieties of nationalism.
क्योंकि इंडियन नेशनलिज्म ऐसी कोई मोनोलिथिक चीज नहीं है, इवन दो वी कीप ऑन सीइंग इंडियन नेशनलिज्म, ओके, क्योंकि उसमें इतने सारे सेक्शंस थे, इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशंस थी, इतनी सारी इंडिविजुअल्स, लीडर्स, उनके आइडियाज थी. तो इंडियन नेशनलिज्म, इवन इफ वी कीप ऑन यूजिंग दैट वर्ड एज अ सिंगुलर वर्ड, विच इज नॉट द केस. It is made up of number of currents and undercurrents, and you will get to know about that by reading modern Indian history. Okay, so that's it for today.